جی دو سپیچیں ہیں اس کے بعد جی مراد سعید صاحب جی رحیم شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، صدر پاکستان نے اس ایوان سے خطاب کیا اور چند دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ آلو فی کلو جو ہے وہ 5 روپے کا ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ذرا جو کارکردگی دکھائی گئی یہاں پہ اور جو منشور تھا حکومت کا اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. جناب اسپیکر، کہا گیا تھا کہ کشکول توڑ دیں گے اور یہاں پہ اپوزیشن سے بڑی تنقید ہوئی حکومت کے اوپر کہ آپ نے کہا تھا کشکول توڑ دیں گے. حکومت نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، کشکول توڑ دیا، کیونکہ 4,500 بلین کا قرضہ تو کشکول میں آتا نہیں ہے، چند سکے آتے ہیں. وعدہ اپنا پورا کر دیا. دوسری جو ابھی بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان اللہ نہ کرے دیوالیہ ہوتے جا رہا ہے. 70,000 بلین تک ہمارا قرضہ پہنچ گیا ہے. یہاں پہ ہمیں اشتہارات دکھائے جاتے ہیں اور جناب اسپیکر میں خود سے الزام نہیں لگاؤں گا. یہ قومی اسمبلی میں سوال ہوا کہ آپ نے کتنے کے اشتہارات دیے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ 270 کروڑ کے اشتہارات دیے. اب اشتہارات کس قسم کے تھے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. اشتہارات یہ کہ اے میرے وطن تجھ سے وعدہ ہے میرا، تجھ سے تیرے اندھیرے کو مٹا دیں گے ہم اور پیتے کاٹے جا رہے ہیں. تختیاں لگ رہی ہے، اتنے میگا واٹ آ گیا، وہ ایڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، بجلی کا بحران ختم ہو گیا، معیشت ترقی کر رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی قومی اسمبلی کے اندر سوال ہوتا ہے کہ آپ وعدے کرتے ہیں باہر جا کے کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمیں تحریری جواب دیا جائے. جناب اسپیکر، تحریری جواب کیا ملتا ہے؟ تحریری جواب اسی قومی اسمبلی میں ملتا ہے کہ 2018 میں ہماری ضرورت کتنی ہوگی؟ 25,000 میگا واٹ اور ہماری ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہوگی؟ 17,790 میگا واٹ، مطلب 8,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہوگا. تو پھر قوم کے ٹیکس کا پیسہ باہر اشتہارات پہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اشتہارات کے اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ اسی قومی اسمبلی میں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ آپ باہر جا کے بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے. ذرا ہمیں اس کا بھی بتا دیا جائے کہ کتنے انویسٹمنٹ آپ لے کے آئے ہیں. تو قومی اسمبلی میں ایک اور سوال کا جواب ملتا ہے تحریری کہ پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ لے کے آئے، پچھلی 2 دہائیوں کی سب سے کم ترین انویسٹمنٹ لے کے آئے. قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے باہر ہم سے وعدہ کیا گیا 2015 اپریل میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں پورے قوم کے سامنے کہ سب سے پہلے مغربی روٹ بنے گا. یہ وعدہ ہوا، ہم سب نے سنا، لیکن جب تحریری جواب قومی اسمبلی میں ملتا ہے تو اس میں خیبر پختونخوا کا نام بھی نہیں ہوتا. پھر جھوٹ. اس کے علاوہ یہاں پہ کہا گیا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ قوم کا خزانہ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، ہم خزانہ بھر دیں گے. پرائم منسٹر صاحب کو میں داد دیتا ہوں، یہ وعدہ بھی پورا کر دیا. ان کا اپنا خزانہ بھر گیا، ان کے خاندان کا خزانہ بھر گیا، ان کے وزیروں مشیروں کا خزانہ بھر گیا. نہیں بھرا تو میرا اور پاکستان کا اور عوام کا خزانہ نہیں بھرا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ایک اور وعدہ تھا منشور میں وعدہ تھا کہ ہم جو ایکسپینڈیچرز ہے اس میں کمی لے کے آئیں گے، ہم عیاشیاں نہیں کریں گے، ہم سادہ زندگی گزاریں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیں گے. جناب اسپیکر، ہوتا کیا ہے کہ پچھلی پیپل پارٹی کی حکومت میں ان کے اوپر جتنی تنقید ہوتی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ تھا 70 کروڑ، انہوں نے پہلے سال پہنچایا 82 کروڑ تک، اگلی سال پہنچایا 88 کروڑ تک. اور اس پہ سکون نہیں آیا، کہتے کہ ہم تو یہاں اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں لیکن ماڈل ٹاؤن میں بھی جانا ہوتا ہے، جاتی عمرہ بھی جانا ہوتا ہے. اس کی دیوار کے لیے 37 کروڑ کی ایک اور سمری جاری کر دی. جناب اسپیکر، 37 کروڑ کی ایک اور
समरी जारी कर दिया और हमारे सदरी मुमलिकत साहब जहाँ यहाँ पे तकरीर कर रहे थे तो बड़ी मासूमियत से, बड़ी सादगी से, लेकिन वो भूल गए। हजरत उमर फारूक तआला अन्हु से किसी ने पूछा, वो एक जगह पे जा रहे थे तो एक बंदा उनके पास आता है, कहते कि उमर आप तो अमीरुल मोमिनीन हो, आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को नहीं रखा। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा काम, मैं इनका अमीर हूं, मेरा काम इनको सिक्योरिटी देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। इनका काम नहीं है कि मुझे सिक्योरिटी दे दे और मुझे गार्ड रखे। हमारे इस ऐवानी सदर के सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ पहले साल खर्च हुआ। तो जनाब स्पीकर, हम यहाँ पे वादे कुछ करते हैं, हम बाहर इश्तिहारात में कुछ दिखाते हैं और हकीकत में क्या कुछ हो रहा है। जनाब स्पीकर, जितने भी वादे थे, जितने भी दावे थे, जो बाहर पार्लियामेंट के दरवाजे से बाहर जाते हैं तो मुल्क में इनकलाब आ चुका है। और इन्होंने कहा कि हम जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6% तक लेके जाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ा देंगे, टैक्स रेट इतना बढ़ा देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को इतनी तरक्की देंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं नहीं कह रहा, इनकी अपनी एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी उठा के देख लीजिए, उसमें क्या है, हमारा जीडीपी को ग्रोथ कितना है। IMF वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1.5 मिलियन बेरोजगार पैदा हो रहा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान दिवालिया होते जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक और शादियानी भी बजाए थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक दर्जा तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई है। लेकिन हकीकत में होता क्या है, LNG के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिनके इन्होंने दाद दिए, जिनके ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वही कह रही है कि LNG के हवाले से हमने कई खुतूत लिखे, उसका जवाब नहीं मिला। नेब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब आपके सामने है। कोई वजीर कहता है कि हम पंजाब में कार्रवाइयां नहीं करने देंगे। जनाब स्पीकर, अगर मुख्तसरन अल्फाज में इस हुकूमत का, इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो आपको क्या नजर आएगा? नजर क्या आएगा? अगर वजीर खजाना की कारकर्दगी के ऊपर आप गौर करें तो उनकी कारकर्दगी सिर्फ इतनी है कि इतना कर्जा आ रहा है, कौम को मुबारक हो। वजीर पानी ने बिजली से पूछा जाए कि आप बिजली के मसले को किस तरह हल करेंगे तो वो कहते हैं कि बस जब कराची में लोग मर रहे थे, जब गर्मी की शदीद लहर दौड़ी थी, जब बिजली नहीं थी, बिजली का बहरान था, उनसे पूछा गया कि बिजली के हवाले से क्या करेंगे, क्या लोडशेडिंग खत्म हो जाएगी? कहते कि लोडशेडिंग तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कौम दुआ करे कि बारिश हो जाए। ये हमारी वजीर पानी और बिजली की कारकर्दगी है। फिर उसके अलावा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है कि मुल्क में अमन अमान किस तरह लेके आएंगे। कहते हैं कि तंदूर पे नजर रख के जो रोटियां ज्यादा लेता है उस पे नजर रख के पाकिस्तान में अमन आ जाएगा। ये उनकी कारकर्दगी है। और एक और वजीर को रखा हुआ है जिसने पहला साल गुजारा कुर्सियां गिनने में कि जलसे में कितने लोग थे, अगला साल गुजारा कि जूतों की कीमत कितनी है, और तीसरा साल गुजार रहे कि कितने दरख्त लगे। ये इनकी कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर, अगर पूरी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो कहते हैं ओलेक्स भेज दे, हुकूमत ना हुई ओलेक्स हुआ, भेज दे। जनाब स्पीकर, एक चीज मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, और अच्छा वजीर सियासत से पूछा गया कि ये अद्वियात की कीमतें बढ़ी है, गरीब बंदा नहीं रह सकता। कहते कि मैं आपको कहती हूं कि आप सस्ती दवाइयां लें। जनाब स्पीकर, हो क्या रहा है? जनाब स्पीकर, फॉरेन ऑफिस काम ने पूछा कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं। कहते कि शिकार पे पाबंदी खत्म करें वरना ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, बात यह है कि हम एक काम करना शुरू कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है, कहते कि मुझ में ये बड़ा बुराई है, मुझ में ये बुराई है, मुझ में ये बुराई है, मुझे कोई एक चीज बता दे कि मैं वो करूं और सारी बुराइयां खत्म हो जाए। कहते कि एक काम करो, झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलो। मैं भी इस हुकूमत को एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ बहुत बोला। आपने दहशतगर्दी की जंग के हवाले से झूठ बोला, आपने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से झूठ बोला, आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से झूठ बोला, आपने टैक्स के हवाले से झूठ बोला, आपने असासों के हवाले से झूठ बोला, आपने खर्चों के हवाले से झूठ बोला, आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से झूठ बोला, आपने मुख्तलिफ इंडिकेटर दिखा दिखा के झूठ बोला, आपने यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ गलत दिखा के झूठ बोला। IMF के कहने के ऊपर आपको वो वापिस लेनी पड़ी।
आपने हर चीज के ऊपर झूठ बोला, आपने इश्तिहारात में फीते काट काट के और तख्तियां लगा जी, लगा के झूठ बोला। wind up आप कीजिए। एक काम शुरू कर दें, आप सच बोलना सीखे। आपने सीपैक के ऊपर झूठ बोला। मुराद सईद साहब वाइंड अप कीजिए जी। स्पीकर साहब मौका Last दीजिए, minute। स्पीकर साहब मौका दीजिए। देखिए, दो 10 चीजें मिनट से ऊपर नहीं देंगे आप, लास्ट मिनट है, वाइंड मैंने अप जान करें। स्पीकर मौका इसलिए दीजिए कि हमारी मिसाल भी वो है कि हमारी पार्टी में भी सीनियर कायदीन होते हैं, अपोजिशन लीडर भी होता है, अपोजिशन में बैक बेंचर्स है। वो मिसाल है कि जब कुर्बानी होती थी गांव में तो कहते कि ये मगज जो है ये दादी का, कहते कि ये पाए जो है ये दादी के, आखिर में बचा क्या, कुछ नहीं। तो हमारी तो मिसाल वो है, पीछे बैठे होते हैं, कभी बारी नहीं मिलती, कहते कि इसके ऊपर वो मिलेगा, उसके ऊपर वो बोलेगा। जी तो बहुत बोरान जाएगा शुक्रिया। किधर? जनाब स्पीकर मौका लीजिए, मौका लास्ट लीजिए। मिनट मैं मुराद सईद साहब, आप लास्ट बोल नहीं मिनट। देंगे तो मौका मैं बात करूंगा ना। जनाब स्पीकर देखिए, एक चीज करे, कौम को सच बोले, चाहे जितनी इश्तिहारात, मैं इनको एक मशवरा देता हूं, मैंने पिछले सेशन में भी इनको मशवरा दिया था कि इतनी इश्तिहारात देने की जरूरत नहीं है, इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक काम शुरू कर दे, आप अवाम को रिलीफ दे दे, उनकी बिजली के बहरान को खत्म कर दे, इनकी बेरोजगारी को खत्म कर दे, इनको इलाज दे दे, इनको तालीम दे दे, इनको खुशहाली दे दे। आपको इश्तिहारात की जरूरत नहीं होगी, ये अवाम खुद आपको जी सर बहुत पे बिठाएंगे। शुक्रिया जी, जनाब बहुत स्पीकर, शुक्रिया जी। मोहम्मद सलमान बलोच साहब जी, मोहम्मद सलमान बलोच साहब जी, आखिरी मिनट जी, वाइंड अप करें जनाब स्पीकर एक मिनट। जी जी जी, दे दिया जी। स्पीकर साहब मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ। मुझे एक सवाल का और भी जवाब चाहिए कि क्या मैंने तो सुना था कि जब आप पार्लियामेंट में और फ्लोर पे बात करते हैं तो उसका बड़ा असर होता है। हमारे एमएनएस के पास इख्तियार कुछ नहीं, हमारे एमएनएस के पास न बिजली का बोराना खत्म कर सकते हैं, न किसी को रोजगार दे सकते हैं, न तरक्याती काम कर सकते हैं, लेकिन बददुआएं हमें मिले, गालियां हमें मिले। हमने चकदरा से कालाम रोड का बारहा जिक्र किया, यहाँ पे ये बात भी हुई कि सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से उसके लिए पैसा दिया गया है, लेकिन इसलिए वहां पे काम शुरू नहीं हो रहा कि वहां से पीएमएलएन सीट नहीं जीती। आप उन लोगों का अगर पैसा यहाँ पे आया है तो आपको काम शुरू करना होगा, आप काम शुरू करेंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर, अगर यहाँ पे पैसा आया है तो उन लोगों का पैसा है, उनकी खुशहाली के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वो जलजला उनके ऊपर आया, सैलाब उनके ऊपर आया, दहशतगर्दी की जंग में इस ऐवान में बातें हुई कि स्वात के लोगों ने पाकिस्तान को बचाया। अगर स्वात के लोगों ने पाकिस्तान को बचाया तो जब उनके लिए पैसा आ चुका है तो आप उनके ऊपर क्यों खर्च नहीं कर रहे? हमारी गैस के हवाले जी से हमने बहुत बात। शुक्रिया जी। स्पीकर साहब आप तशरीफ लाया करें, आप बहुत कम आते हैं जी। सलमान बलोच साहब, आपको मौका मैं दूंगा। नहीं स्पीकर साहब, जी जी, तशरीफ रखें जी। स्पीकर साहब बात सुनिए। जी सलमान बलोच साहब जी, आपने गलत बयान नहीं किया, जी 10 मिनट से ऊपर 4 मिनट दे दिए, तशरीफ रखें जी। जी सलमान